What is it? Like basically, partnership is a relation where two persons share profits and losses. Two or more persons share profits and losses, right? So does it mean that every such relation or whenever there are association of persons who are carrying on a business and sharing profit, does it always constitute a partnership? Example, जब जो मैंने कल example दिया था, father and daughter has entered into an agreement to carry on a business. However, the entire profit will belongs to daughter, and if there are losses, those will be shared by or those belongs to father. Now, is this a right existence of the partnership? Try to understand. There is a business, yes. More than two person, yes. Is there agreement? Yes. Sharing of the profits. The next important feature is the sharing of the profits. Are they sharing the profits? No. 100% profits belongs to daughter. However, losses share karte hain. In case if a relation has to be a partnership, what is important? Sharing of the profits is important. Matlab in my example, right, daughter only shares the profit. Father and daughter do not share the profits. So I will say, as they are not sharing the profits, it is not a partnership. Try to understand. But ऐसे father and daughter में relation ऐसा है कि उन्होंने business start किया है, right? And they will be sharing profit and losses like 50%, 50%. So now, right, they are sharing the profits as well. So now that relation can be said to be partnership. दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं. You have appointed a person as your agent. Now, your आप दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जो भी इस एजेंसी बिजनेस से प्रॉफिट होगा, यू सेल ऑन माई बिहाफ, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें मैं तुझे 30% दूंगा. नाउ यू आर right gonna give him 30% of your profit. So means you are sharing the profits. पहले तो मैंने बोला every relation may not be partnership. Only those relations where you are sharing the profits from a business, वही relation partnership हो सकती है. तो first example में when daughter was sharing 100% profit, all profits belongs to daughter. Even if the relation between father and daughter is of a like a partnership, it is not a partnership. In true sense, it is not a partnership because father is not sharing the profits. अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें राइट देयर इज ए एजेंट हु इज शेयरिंग द प्रॉफिट्स. तो मैंने बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट. तो नाउ योर एजेंट इज शेयरिंग द प्रॉफिट. तो आपका जो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एलिमेंट है वो आ गया. तो डज इट मीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट आर द पार्टनर्स? नो. रीजन इज प्रिंसिपल is bound to the acts of agent. अगर agent does anything on behalf of principal, in that case principal is bound, but agent is not bound by the acts of the principal. Principal कुछ एक्शन लेता है उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है. द रिलेशन इज नॉट ऑफ ए म्यूचुअल एजेंसी. मतलब अगर एक पार्टनर ए एंड बी आर द पार्टनर्स, फॉर एज एक्शन बी इज लायबल, फॉर बीज एक्शन ए इज ऑल्सो लायबल. ऐसे रिलेशन होता है तो दैट इज अ म्यूचुअल एजेंसी. तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स. अगर शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स है तो वो पार्टनरशिप हो सकती है, होगी गारंटी नहीं. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. सबसे पहले देखा जाता है फर्स्ट टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप. फर्स्ट टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप इज शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स. अगर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो पार्टनरशिप हो सकती है. अगर प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहे तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी. एज सिंपल एज दैट. इसलिए मेरा जो फर्स्ट एग्जांपल था कि डॉटर ओनली शेयर्स प्रॉफिट, फादर को कोई प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे, दैट रिलेशनशिप इज नॉट ए प्रॉफिट पार्टनरशिप. दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, एजेंट शेयर्स प्रॉफिट. एजेंट शेयर्स प्रॉफिट विद द प्रिंसिपल. सो फर्स्ट आ गया कि शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट. यस, तो इट कैन बी पार्टनरशिप बट इट मे नॉट बी पार्टनरशिप.
हो सकती है, होगी ऐसे नहीं। क्यों? बिकॉज आपको फिर देखना है, अगर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो दूसरा टेस्ट देखना है, टेस्ट नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 इज वेदर देयर इज ए म्यूचुअल एजेंसी और नॉट। अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो ही पार्टनरशिप, अदरवाइज नहीं। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? इफ ए पर्सन टेक्स एक्शन ही बाइंड्स अदर, and if other person takes action he binds the first person. Now what is the relation between the principal and agent? For the actions like your agency, right, agent जो आपका एजेंट है उसके एक्शन के लिए आप लायबल हो, बट आपके एक्शन के लिए लायबल नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, भले ही आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो फिर भी आप पार्टनर नहीं हो। दूसरा एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना। देयर इज अ लैंड, टू ब्रदर्स ओन ए लैंड, उनके फादर से उनको लैंड मिली है, राइट, विरासत में। नाउ दे हैव गिवन इट ऑन ए रेंट। सो जो लैंड से रेंट मिल रहा है दे आर शेयरिंग। डज इट मेक देम पार्टनर्स? यू हैव टू चेक। ओके, first is, are they sharing the profits? Yes, they are sharing the profits, so it can be partnership. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ it is a partnership, मैं क्या बोल रहा हूँ, it can be partnership. Second, फिर देखो, चलो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखने का या दूसरी टेस्ट है, दूसरी कंडीशन देखने की, इज देयर रिलेशन ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी? एक्शंस ऑफ ए ब्रदर, एक suppose Mr. A does not bind another brother B. At the same time, actions of brother B does not bind the A. So उनमें mutual agency नहीं है, therefore there is no partnership. So always remember, सबसे पहले business होना चाहिए, मतलब relationship to share the profits. So सबसे पहले condition क्या है कि profit share होने चाहिए, and उसके beyond what is the final test is mutual agency. Like if a partner purchases goods, all other partners are liable to pay to the creditor. A, B, C are the partner. A ने goods purchase के firm के लिए, तो B and C are liable along with A to pay to the creditor. अगर A payment नहीं करता है तो creditor can file case against A, B as well as C. तो B and C नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हम नहीं पे करेंगे, ऐसे नहीं। समझ में आ रहा है? दूसरा, if B purchases goods on behalf of firm, A and C are liable along with B to pay to the creditor. C purchases goods on behalf of firm, A and B are liable along with C. अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करते हो तो क्रेडिटर C के साथ A and B को भी केस डालेगा। So इसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। You are responsible for others' action. Try to understand. Your actions makes others responsible. Others' actions makes you responsible. उसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। कुछ अच्छा हुआ तो सब में बटेगा, कुछ बुरा हुआ सब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर ऐसे रिलेशन है तो ही हम बोलते हैं वो पार्टनरशिप है, अदरवाइज नहीं। समझ में आ रहा है? देन सो इट इज एक्चुअली डिस्कस इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें बहुत डीप में डिस्कस किया गया है कि कौन से रिलेशन पार्टनरशिप हो सकते हैं या कौन से नहीं। मैंने एक दो एग्जांपल्स दिए, फादर एंड डॉटर का, फिर मैंने को ओनर्स का एग्जांपल दिया। टू ब्रदर्स, राइट, आर द को ओनर्स ऑफ ए प्रॉपर्टी शेयरिंग द रेंट्स, डज इट make them a partner? No, because they are, even though they are sharing profits, they are not mutual agent of each other and therefore they are not a partners or it is not a partnership. ऐसे सो म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या मैंने बोला, अगर कुछ अच्छा होता है तो सब में बटेगा, अगर कुछ बुरा होता है तो सबको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। सो माई एक्शंस विल बाइंड यू, योर एक्शंस विल बाइंड मी, दैट रिलेशनशिप इज म्यूचुअल एजेंसी। अगर मैं कुछ एक्शन लेता हूं तो आप बोल नहीं सकते कि आपके एक्शंस नहीं, इट इज एज गुड एज योर एक्शन एंड आपके एक्शंस इज एज गुड एज माय एक्शन। समझ में आ रहा है? That is called as mutual agency. And सबसे important test of the existence of the partnership is a mutual agency. First test is the sharing of the profit and second test is the existence of mutual agency. अगर दोनों का आंसर S है,
दोनों के आंसर एस है. शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एस, existence of a mutual agency yes, then only it is a partnership, otherwise it is not a partnership. As simple as that. ठीक है. नेक्स्ट, आगे चलते हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. बट राइट, दूसरी बात, यू विल लर्न इन डिटेल इन पार्टनरशिप एक्ट, डोंट वरी. वी आर लर्निंग अकाउंटिंग, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्टनरशिप होगी, अदरवाइज वी कैन नॉट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. ठीक है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ओके. Okay, I can share my screen now. Okay. Let's go ahead. Yes, someone has said, sir, our ma'am was discussing the portion today and she said that some of the chapters are for self-study and the board will reveal the option, like option questions. As far as my knowledge is concerned, my experience is concerned, जो लास्ट ईयर का फॉर्मेट था ना वही रहेगा. लास्ट ईयर का जो फॉर्मेट था, भले ही मैंने बोला बुक नया है, सिलेबस वही है. इट इज ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, दैट्स इट. कुछ अलग नहीं है, एवरीथिंग इज सेम. खाली क्या चेंज हुआ है पता है ना, ये वाला. यहाँ पे कौन सा चैप्टर था, सिंगल एंट्री, जो 11th में डाल दिया, और ये 11th में था जो यहाँ पे लेके आए. महाराष्ट्र बोर्ड इतनी तकलीफ नहीं लेगी, डोंट वरी एट ऑल. ठीक है. सो जो लास्ट ईयर का पेपर फॉर्मेट था ना वही रहेगा, मतलब दिस चैप्टर्स विल बी फॉर ऑप्शन. ये ऑप्शन रहे. कंपनी अकाउंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये ऑप्शन में रहेंगे. लिख के लेना, मैं बोल रहा हूं आपको, ये ऑप्शन में रहेंगे. इसके रीजन भी है. देयर आर मेनी टीचर्स हु कैन टीच कंपनी अकाउंट्स एट ऑल, तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो महाराष्ट्र बोर्ड में होगी नहीं. होगी तो भी टीचर सीरियसली लेंगे नहीं. दोनों है ना, दोनों तरीके से. सो ये 3 चैप्टर्स मेरे हिसाब से ऑप्शन में रहेंगे, एंड देयरफॉर आई एम नॉट गोना टच देम राइट नाउ टिल आई एक्चुअली गेट द सिलेबस. जो मैंने चैप्टर लिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट विल बी मैंडेटरी, इट विल बी कंपल्सरी होगा, डोंट वरी एट ऑल. जो मैंने छुट्टियों में लिया और बाद में मैं ये दिसंबर में लेता हूँ, नवंबर दिसंबर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेता हूँ फिर से एक बार. ठीक है. तो ये कंपल्सरी होगा, बाकी ये सब चैप्टर्स कंपल्सरी होंगे. उसमें भी मैंने बोला इन ये चैप्टर्स है ना 3, एक दूसरे को ऑप्शन में रहेंगे. सो ऑब्वियसली मैं लास्ट ईयर जैसे पेपर का फॉर्मेट था ना, मैं वैसे ही जा रहा हूँ. सो डोंट वरी एट ऑल, कंसिडरिंग एवरीथिंग, दे वोंट फॉलो ए डिफरेंट फॉर्मेट. ठीक है. सो डोंट वरी एट ऑल. So I have that, like even I have heard that ki they may reduce the syllabus. They won't reduce the syllabus. They will keep it as an option. अब बुक्स तो
कम नहीं करेंगे ना, वो क्या करेंगे ऑप्शन रख देंगे जैसे लास्ट ईयर था वैसे। आई वॉज हैप्पी एक्चुअली कि दिस चैप्टर्स विल बी कंपल्सरी, कि ये चैप्टर्स अगर कंपल्सरी होते हैं ना तो बहुत अच्छा था, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है गोइंग फॉरवर्ड, कंपनी अकाउंट्स एंड एवरीथिंग। बट महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से राइट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। जब मुझे लगा कि नया सिलेबस आएगा, दे हैव आल्सो मेड सम चेंजेस, इसमें नए चेंजेस किए उन्होंने, राइट। तो मुझे लगता था कि इस पे पूछेंगे, बट ऑल कंसिडरिंग आर लाइक कैपेबिलिटी महाराष्ट्र बोर्ड की जो है वो, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड बट आई एक्सेप्ट द रियलिटी, ठीक है। I ask students to take Maharashtra board only, but at the end, I also tell them, right, कि जो महाराष्ट्र बोर्ड में वो that is not everything. Many things are not correct और many things are not covered in detail. आगे, so कल हमने डिस्कस किया था डीड वगैरह, ठीक है। Now I will go into right accounting. Let's see. Okay, ये मैं आप सुबह दिखा रहा था आप लोगों को. Let me open my sheet. Yes. So जिनको डाउट है लिख लेना. Whether there exist partnership. Test 1. Are they sharing profits? Are they sharing the profits? Answer can be yes or answer can be no. Flow chart is suppose. This is a flow chart. No, not a partnership. It's not a partnership. If yes, right, can be partnership. Can be. इस पार्टनरशिप में एक पॉसिबिलिटी है पार्टनरशिप हो सकती है. इफ यस तो गो फॉर द टेस्ट 2. नो वन विल आस्क यू इन महाराष्ट्र बोर्ड. ये मैं सिखाता हूँ बिकॉज ये पता होनी चाहिए चीजें. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट नो वन टॉट मी. दैट इज अ रियलिटी, हार्श रियलिटी. आई लर्न इट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. सो जब भी आप सोचते हो, जब भी आप पढ़ाई करते हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि जो बुक में वो तो एक चीज है, बट उसके बाहर भी बहुत सारी चीज है. सो ट्राई टू लर्न दोस थिंग्स बिकॉज नाउ यू मस्ट हैव लाइक लिसन कि मेनी guys have lost their job and everything. So it is not the qualification that matters. What is more important, the skill sets. You have to have those skill sets. आपको डेवलप करने होंगे. ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन विल हेल्प यू टू राइट क्रिएट द स्किल सेट, डेवलप द स्किल सेट, बट नॉट नेसेसरी कि बीकॉम वगैरह ये कोर्सेस आपको स्किल्स के जनरेट करके देंगे. वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की फैक्ट्रीज है. बिकॉज आपको भी पता है कैसे होता है कॉलेज में क्या होता है. सो जो भी करो स्किल सेट जनरेट करो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. टेस्ट 2 इज राइट, is there mutual agency? Again answer can be yes or no. Yes or no. If answer is yes, it's a partnership. If answer is no, not a partnership.
नॉट ए पार्टनरशिप। सो मैंने बोला दोनों जगह पे आंसर यस होना चाहिए, यहां पे भी और यहां पे भी, बोथ टेस्ट शुड बी यस। प्रॉफिट पहले पूछो, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, यस। फिर पूछो आर दे म्यूचुअल एजेंट्स, यस। देन इट इज ए पार्टनरशिप, अदरवाइज इट इज नॉट ए पार्टनरशिप। ठीक है, आगे नेक्स्ट। नाउ द टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स, ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ द पार्टनर। फर्स्ट टाइप इज एक्टिव पार्टनर, और जिसको बोला जाता है वर्किंग पार्टनर। उसके नाम में ही है, द पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्ट इनटू डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज एक्टिव पार्टनर। नॉट नेसेसरी एवरी पार्टनर टेक्स एक्टिव पार्ट। लाइक देयर आर 10 पार्टनर्स एंड उनमें से 3 पार्टनर्स पूरा बिजनेस देखते वगैरह, 7 पार्टनर्स आर राइट, आज 3 पार्टनर्स कि आप पूरा देखो, राइट, आप मैनेज करो, यू लुक इनटू डे टू डे अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप, आप ही डिसीजन ले लो। तो इन दैट केस दोस 3 पार्टनर्स who are taking active part into the day-to-day management are called as working partners or active partner. Generally, उनको सैलरी भी मिलती है, besides profit they also get salary because वो बाकी लोगों का भी काम कर रहे हैं। Try to understand. So मिलेगी नहीं मिलेगी हमें डीड चेक करनी होगी, बट जनरली बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्टिव और वर्किंग पार्टनर, द पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्ट इनटू द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। और जो पार्टनर्स जो डे टू डे मैनेजमेंट में काम लेते नहीं, उनको स्लीपिंग या डॉर्मन पार्टनर बोला जाता है। लिख लेना सेकंड, स्लीपिंग पार्टनर और डॉर्मन पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मन पार्टनर। ठीक है, तो उनको बोला जाएगा स्लीपिंग और डॉर्मन पार्टनर। लिख लेना, द पार्टनर्स हु डोंट टेक एक्टिव पार्ट इनटू द डे टू डे मैनेजमेंट, डॉर्मन पार्टनर। लिखो, चलो जल्दी लिखो। ठीक है, नेक्स्ट आगे। सो ये दोनों अपोजिट आ गए, एक्टिव वर्सेस स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, थर्ड, बिकॉज हमने पार्टनरशिप में देखा है कल ही डेफिनेशन, पार्टनरशिप कैन बी कैरिड बाय ऑल ऑफ देम। इफ एवरीवन इज टेकिंग एक्टिव पार्ट तो एवरीवन इज एक्टिव पार्टनर, और वन ऑफ देम फॉर लाइक एक्टिंग फॉर ऑल। तो सम ऑफ देम में टेक एक्टिव पार्ट, बाकी लोग खाली फाइनेंस देंगे, कैपिटल डालेंगे, बाकी कुछ नहीं। प्रॉफिट एवरीवन हैज टू शेयर। इफ यू आर टू बी a partner you must share the profit. Try to understand. So ऐसे कोई हो नहीं सकता कि जो पार्टनर है बट प्रॉफिट नहीं ले रहा है। तो अगर जिसको प्रॉफिट नहीं मिलता वो पार्टनर कहां से हो गया? समझ में आ रहा है? सो एक्टिव पार्टनर takes active part, sleeping partner does not take active part but he contributes capital. आगे थर्ड, एक होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, ठीक है, इज ए पार्टनर, nominal partner is a partner who lends his name to the partnership, to partnership. क्या बोला मैंने? नॉमिनल पार्टनर इज ए पार्टनर हु लेंड्स हिज नेम टू द पार्टनरशिप। एग्जांपल, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एग्जांपल हम पार्टनरशिप में और हमें धोनी आके हमारे साथ
पार्टनर बन जाता है. सो धोनी हैज नेम, उसके नाम के वजह से हमारा बिजनेस इंक्रीज होगा. सिंपल है. हमारे पास कस्टमर्स आएंगे, उसका फायदा होगा. ही इज गिविंग हिज गुडविल, हिज नेम. Such partner is called as nominal partner. The partner who gives, yes, he can be your brand ambassador, right? Right. Such partner is called as nominal partner. Fourth, active partner, sleeping partner, nominal partner. एक minor partner होता है. What do you mean by minor partner? Partner who has not completed the like 18 years of his age. Such partner is called as minor partner. As per Indian Contract Act 1872. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. As per right Indian Contract Act 1872, a minor cannot enter into contract or contracts with minor are void ab initio. Void ab initio मतलब void ab initio. Ab initio मतलब from the beginning, from the very beginning they are void. Void means they are not legal. They don't have legal effects. Illegal बोला तो भी चलेगा. Contracts with a minor are void ab initio because for to enter into contract you must be a major. Like example, अभी right you cannot enter into contract. Like आपके 18 years complete नहीं है, so you cannot enter into contract. I think मुझे लगता है 12 के बाद जून जुलाई अगस्त में आपका 18 years complete हो जाएंगे, right? So you cannot sign the contract, you cannot enter into contract because आपके लिए आपके पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? दे विल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन योर बिहाफ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हाउएवर एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में यू कैन एडमिट एक माइनर को पार्टनर ले सकते हो फॉर हिज बेनिफिट्स. मतलब ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स, all are major partners and they take D, a minor, into partnership. Existing partnership है, नई partnership minor को लेके नहीं हो सकती. Because when you form the partnership, you enter into contract. So तब हम minor को लेके partnership नहीं कर सकते. A new partnership cannot be floated, cannot be formed with a minor as a partner. तो इन दोनों की पहले, इन तीनों की पहली पार्टनरशिप है एंड अब आप इसको पार्टनर बोल के ले रहे हो. रीजन कुछ भी है, बट he will be partner only for his benefits. D will get only profits. D will not get any losses. D will get only profit. Minor partner only gets profit because you cannot hold minor responsible for the losses. Again, हम बोलते हैं कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बराबर? मतलब अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स से फर्म के लाइबिलिटीज पे किए जाते हैं. मतलब आपका पार्टनरशिप चौपट हो गई तो आपके घर वगैरह उसको लिलाव करके उससे जो पैसा आएगा उससे पार्टनरशिप के लाइबिलिटीज पे किए जाएंगे. सो दैट काइंड ऑफ लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. हाउएवर माइनर की लाइबिलिटी इज ऑलवेज लिमिटेड, इट इज नेवर एवर लाइक अनलिमिटेड. सो माइनर को आप पार्टनर ले सकते हो बट उसको खाली प्रॉफिट में शेयर देना होगा एंड उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. माइनर एज ए पार्टनर, राइट, उसके क्या राइट्स होते हैं, क्या लाइबिलिटीज हो सकती है, राइट, वो मेजर होगा तो क्या होगा वगैरह, ये सब चीजें यू विल लर्न इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन लॉज, राइट? अभी मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं बट मैं इतना ही बोल रहा हूं कि माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर हिज बेनिफिट्स. अभी मैं खाली इतना ही बोलता हूं कि यू कैन एडमिट ए माइनर बट फॉर हिज बेनिफिट्स. ठीक है? यस, शेयरिंग द लॉसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, शेयरिंग द प्रॉफिट्स इज इंपॉर्टेंट. मैंने क्वेश्चन क्या देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है लॉसेस नहीं लिखा है, मैंने बोला है शेयरिंग द प्रॉफिट्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा है शेयरिंग द प्रॉफिट्स. minor does not share the minor does not share the losses, still is a partner. प्रॉफिट शेयर करना इंपॉर्टेंट है, लॉसेस नहीं. सो माइनर नेवर शेयर द लॉसेस, स्टिल इज ए पार्टनर.
समझ में आ रहा है? सो पार्टनर may share the losses, partner may share the profit, but what is most important? Sharing of the profits. तो कोई भी पार्टनर हो, minor can never share the losses. Nominal partner has to share the losses. He is responsible for the activities of the partnership. Yes. Next, third, fifth type of partner, partner in profit only. नाम में ही है, ऐसा बंदा जो खाली प्रॉफिट शेयर करेगा. हो सकता है एबीसी आर द पार्टनर्स एंड सी को आपने एडमिट किया जस्ट फॉर द प्रॉफिट. मतलब अगर लॉस होगा ए एंड बी शेयर करेंगे, प्रॉफिट होगा तो तीनों शेयर करेंगे. So C is a partner in profit only. Like minor is also partner in profit only. Minor is also partner in profit only. Minor हमेशा partner in profit only होता है. However, major can be also a partner in profit only. The partner who shares only profit. The partner who shares only profit. He never share losses. Such partner is called as partner in profit only. आगे. Next. कोई बोलेगा सर ऐसे क्यों? देखो आपने उसको लिया है, ये आपकी मर्जी है ना. It is a relation. Who said it doesn't? I am not profit. You are not understanding. मैं बोल रहा हूं ध्यान देना. This is a firm and this is third party creditor. फर्म ने इससे गुड्स परचेस किए हैं, अगर फर्म को पे करना है ना, उसमें ये बंदा भी आएगा. Everyone has to pay. Loss is different and liabilities are different. Mutual agency मतलब क्या? Right? Everyone, all the partners are liable to pay to the third parties. That is called as mutual agency. And loss is different. वो loss share करेगा नहीं करेगा वो अलग है. समझ में आ रहा है? Next. आगे. म्यूचुअल एजेंसी मतलब यू आर टॉकिंग विद द थर्ड पार्टीज. थर्ड पार्टीज के साथ जब ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें अगर कोई लायबिलिटी आती है, यू शुड बी ऑल्सो लायबल. आगे 1 2 3 4 5 एंड द लास्ट टाइप ऑफ पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, राइट? बिकॉज जस्ट ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड के लिए आते हैं. पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. अच्छा, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हो गया. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. By holding out. What do you mean by partner by holding out? Very important, interesting concept. Everyone is liable to pay to the liabilities. Every partner, कोई भी हो, is liable to the third parties. ठीक है? Profit अलग और liabilities अलग. आगे. My screen is lagging behind. ठीक है ना? वैसे भी मैं मैक्सिमम तो डिस्कस ही कर रहा हूं, ध्यान देना. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब क्या? एग्जांपल ध्यान देना. मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, यू विल अंडरस्टैंड. Suppose A and B are the partners. They are partners. C is their employee. A and B has to purchase, example, कोई भी लेता हो, clothes for firm. A and B are the partners. They want to purchase clothes for the firm. C is their employee. इन दोनों में डिस्कशन चल रहा है कि किससे क्लोथ लेते हैं, किससे लेते हैं, लाइक दैट. सी इज देयर एम्प्लॉय. सी बोलता है उसका एक फ्रेंड है जो क्लोथ्स में डील करता है.
Suppose D is a merchant or cloth is a trader in clothes. Try to understand. D is a trader. They are friends. अब C क्या बोलता है, ध्यान देना. C बोलता है A and B को बोलता है don't worry, I will give, like I will make sure that we will get a good discount. He is my good friend. Now C is dealing with D now. C D को बोलता है कि हम तीनों पार्टनर है. Is C partner? No. C is a employee. C D को बोल रहा है हम तीनों पार्टनर है और हमें गुड्स चाहिए, हमें क्लोथ चाहिए ऑफ ₹10 लाख. कोई भी वैल्यू ले ली, 10 लाख. D under impression that C, his friend, is a partner. वो बोलता है I am ready to give you, right, मैं आपको 10 लाख के क्लोथ देता हूं. And D sells goods, that is clothes, to firm A and B, ₹10 lakhs. C ने D को क्या बोला है? I am a partner. C holds out himself as a partner even though he is not a partner. Actually C partner है क्या? नहीं. फिर भी वो बोल रहा है मैं पार्टनर हूं. किसको बोल रहा है? D को. And D in good faith, under impression कि C is a partner, sells goods to the firm of ₹10 lakhs. And कल जाके A and B denies to make the payment. A and B बोलते हम नहीं पे करेंगे. Now D files a case against A, B as well as C कि इन्होंने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए, ये तीनों पार्टनर है. C हाथ ऊपर करता है, बोलता है मैं पार्टनर था ही नहीं कभी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ए एंड बी ने पे करना चाहिए, मैं क्यों पे करूं. तो कोड बोलती है यू होल्ड आउट यूर सेल्फ एज ए पार्टनर फॉर दिस ट्रांजैक्शन. तूने जो झूठ बोला है उसके वजह से डी ने उसको सेल किया है, पार्ट ए एंड बी को. डी इन गुड फेथ, उसने तेरे पे ट्रस्ट रखा कि तू पार्टनर है, तू नहीं है फिर भी तूने दिखाया तू पार्टनर है. तो इस ट्रांजैक्शन के लिए तू भी पार्टनर है और ए बी एंड सी तुम तीनों मिला के उसको 10 लाख दे दो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज नॉट ए एक्चुअल पार्टनर, हाउएवर ही होल्ड्स आउट हिमसेल्फ एज ए पार्टनर. वो बोलते फिरता है मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं, बट वो पार्टनर होता है क्या? नहीं. एंड उसके उस होल्डिंग आउट पे, उसके उस रिप्रेजेंटेशन पे थर्ड पार्टी enters into contract with the firm and gives money, gives credit and suffers. यहां पे डी सफर हुआ क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले, उसका बैड डेट्स हो रहा है. तो नाउ ही हैज अ राइट टू रिकवर दैट मनी फ्रॉम सी एज वेल. तब सी ये नहीं बोल सकता कि मैं पार्टनर नहीं है. कोर्ट स्टॉप्स सी फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट that you represented yourself as a partner. कोर्ट बोलता है तूने बोला था ना तू पार्टनर है, तो इस ट्रांजैक्शन के लिए तू पार्टनर है, इस ट्रांजैक्शन के लिए तू पार्टनर है. एंड ए बी के साथ तू भी रिस्पॉन्सिबल है, तुम तीनों ने मिला के उसके 10 लाख दे दो. दिस इज ए पार्टनर. सो सी इज कॉल्ड एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय इस्टॉपल. दूसरा नाम है पार्टनर बाय इस्टॉपल. Partner by estoppel. Court stops him and treats him as a partner. कोर्ट बोलती है तू अब ये बोल नहीं सकता तू पार्टनर नहीं है, तूने रिप्रेजेंट किया था तू पार्टनर है, इसलिए इस खाली इस ट्रांजैक्शन के लिए तू पार्टनर है, बाकी नहीं, बट इस ट्रांजैक्शन के लिए तू पार्टनर है. दिस इज एग्जांपल 1. दूसरा एग्जांपल, यही एग्जांपल ए एंड बी are the partners. C is their employee. They wants to buy the clothes of ₹10 lakhs. D is a friend of C. C बोलता है मेरा अच्छा फ्रेंड है, आपको डिस्काउंट दूंगा वगैरह
12 लाख के गुड्स हम आपको 10 लाख में देता हूँ, ऐसे वैसे मेरी पहचान है, चलो चलते हैं। एबीसी सब जाते, या ए एन सी जाता है या बी एन सी जाता है, और एबीसी तीनों जाते हैं डी के पास। नाउ ए एंड बी डी से बात कर रहे हैं। पहले कौन बात कर रहा था? सी। ए एंड बी बात कर रहे हैं, हम तीनों पार्टनर है। ए बोल रहा है मैं, बी और ये सी भी हमारा पार्टनर है। क्यों? बिकॉज डिस्काउंट मिलेगा। अगर सी पार्टनर बोलते हो तो डी दे देगा ना गुड्स, वो फ्रेंड है ना। तो नाउ ए बी एंड सी, राइट, ए रिप्रेजेंट सी एज ए इज पार्टनर। ये बोल रहा है ये हमारा पार्टनर है, एंड सी चुप है। सी ने बोलना चाहिए ना डी को, नहीं नहीं मैं इनका पार्टनर नहीं हूं, मैं इनका एम्प्लॉय हूं। समझ में आ रहा है? ए सी चुप है, सी लेट्स हिम टू बी रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर। यहां पे क्या था? सी खुद होके बोला मैं पार्टनर हूं, सी रिप्रेजेंटेड हिम एज पार्टनर। और यहां पे क्या हो रहा है? सी लेट अदर्स टू रिप्रेजेंट हिम एज देयर पार्टनर। खुद बोल रहा है पार्टनर है तो भी उसकी लगने वाली है, किसी और को अलाउ कर रहा है आप मुझे पार्टनर है बोलो तो भी उसकी लगेगी। सिंपल वर्ड्स में सी ने बोलना चाहिए ना कि मैं पार्टनर नहीं हूं। एक्चुअली यहाँ पे जब सी गया था खुद होके, सी ने बोलना चाहिए देख मैं इनका एम्प्लॉय है, ये फर्म है, तो इनको गुड सेल कर, वो पैसे देंगे। ऐसे बोलता है तो उसने बोला है कि वो पार्टनर नहीं है, तो हम सी को पकड़ेंगे नहीं। बट सी बोल रहा है मैं पार्टनर हूं, इसलिए कोर्ट उसको पकड़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? जब ए एन बी बोल रहे हैं हमारा पार्टनर है, वो शांत है, वो डी को नहीं बोल रहा है कि मैं पार्टनर नहीं हूं बोल के, वो अलाउ कर रहा है ए एन बी को। खुद झूठ बोल रहा है या किसी और को झूठ बोलने दे रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन दैट केस, right, A represents C as his their partner or B represents C as their partner, and C allows them, allow करता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये निकाल दो कोई तो, ठीक है, स्क्रीन पे जिसने किया है। सो अगर वो अलाउ करता है, इन दैट केस डी इन गुड फेथ, चलो सी उनका, सी ने कुछ बोला भी नहीं कि वो पार्टनर नहीं, तो डी को लगता है वो पार्टनर होगा, अच्छा फ्रेंड है उसका, एंड गिव्स द क्रेडिट टू द फर्म, सेल करता है क्रेडिट पे 10 लाख के गुड्स, एंड ए एंड बी डिफॉल्ट्स। अब डी ने कोर्ट में गया ए बी सी के अगेंस्ट। सी बोल रहा है मैं पार्टनर नहीं हूं, और मैंने बोला भी नहीं कभी मैं पार्टनर हूं, इन लोगों ने बोला मैं पार्टनर हूं, मैंने नहीं बोला। कोर्ट बोलती है जब इन लोगों ने बोला तू पार्टनर है, तूने क्या, राइट, तूने बोलना चाहिए था ना तू पार्टनर नहीं। या तो तू खुद झूठ बोल रहा है या किसी और को झूठ बोलने दे रहा है, इट इज इक्वल टू तू झूठ बोल रहा है। सो इन सच केस the C will be held out as a partner for this transaction, and A, B, and C all have to pay 10 lakhs to C, to D. ऐसे एग्जांपल दिया है मैंने आपको। अब लिखते हैं डेफिनेशन, लिखो, नीचे लिखता हूं, ठीक है। ए पर्सन who is not a actual partner, नॉट एक्चुअल पार्टनर, वो कभी एक्चुअल पार्टनर होता ही नहीं। ए पर्सन who is not actual partner represents himself as a partner, as a partner, और खुद झूठ बोलता है, या और allows others to represent him as their partner, will be treated, right,
as partner for such transaction will be treated as a partner by holding out. For such transactions, if the third party in good faith on such representation gives credit and suffers. A person who is not an actual person, partner, represents himself as a partner or allows others to be represented as their partner will be treated as a partner by holding out for such transactions if the third person in good faith on such representations gives credit and suffer. D suffers and therefore D has a right to claim that 10 lakhs from A, B as well as C. समझ में आ रहा है? So this is a concept of partner by holding out. वो सिंपल वर्ड्स में सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाया है. ठीक है? लॉ में इसके इम्प्लीकेशन बहुत बड़े हैं. So I'm not here to discuss the law. I'm just here to tell you the types of the partners. तो कौन कौन से टाइप्स हैं? एक्टिव पार्टनर मतलब और वर्किंग पार्टनर, द पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्ट इनटू द डे टू डे मैनेजमेंट. स्लीपिंग पार्टनर or dormant partner, the partner who gives the capital but does not take active part into the business. Then इसलिए sleeping partners लोगों को नहीं पता होते because they never take active part. वो partner होते हैं but उनका नाम नहीं पता होता है. समझ में आ रहा है? आगे सर, तो if A, B, C sell goods as a partner, so will C get no C देखो लॉस होगा तो सी को, अगर लॉस होता है ना तो सी को पकड़ा जाएगा, प्रॉफिट में सी को कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है? सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर लॉस होता है ना तो सी को पकड़ा जाएगा, प्रॉफिट में नहीं मिलेगा कुछ सी को. तो सी तब नहीं बोल सकता कि देखो मैंने पार्टनर है इसलिए आपको प्रॉफिट हुआ होगा. बोलते तुझे किसने बोला था? समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम होता है तो उसको पकड़ा जाएगा. सपोज एग्जांपल डी को पैसे मिल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. समझ में आ रहा है? आगे कोई सफर करता है तो उसको पकड़ा जाएगा. थर्ड पार्टी सफर करती है तो देयर कैन बी स्कैम. यस ऑब्वियसली जो डी थर्ड पर्सन है ना उसको पता नहीं होना चाहिए. अगर उसको पता है कि ये पार्टनर नहीं फिर भी दिखा रहा है पार्टनर है तो इस केस में सी को नहीं पकड़ सकता क्योंकि कोर्ट बोलेगा तुझे पता था ये पार्टनर नहीं, ये झूठ बोल रहा है तो भी तूने उस पर ट्रस्ट किया तो तेरी गलती है. देखो डी को पता नहीं है झूठ बोल रहा है, वो ब्लाइंडली इन गुड फेथ वो ट्रस्ट रख रहा है तो कोर्ट डी को प्रोटेक्ट करेगी. बट डी को पता है साला ये झूठ बोल रहा है और फिर भी उस पर ट्रस्ट कर रहा है तो कोर्ट बोलती है तू नालायक है, वो नहीं है, वो झूठ बोल रहा है तुझे पता है फिर भी तू ट्रस्ट रख रहा है. तो डी को लाइक डी हैज टू सफर, डी कैन नॉट हेल्ड सी रिस्पॉन्सिबल. डी को ए एंड बी से पैसे लेने पड़ेंगे, सी से नहीं ले सकता. तो वही मैंने लिखा है ना इन गुड फेथ. ये इंपॉर्टेंट गुड फेथ में. आगे नेक्स्ट ठीक है. अगर डिफॉल्ट होता है तो सी को पकड़ा जाएगा. ट्रांजैक्शन में डिफॉल्ट होता है तो सी को पकड़ा जाएगा. अगर ट्रांजैक्शन ठीक से सब कुछ क्लियर है, डी को पैसे मिल गए तो क्या प्रॉब्लम है? डी को पैसे मिलने से मतलब है ना. अगर ए एंड बी ने पेड कर दिए तो क्यों सी को पकड़ा जाएगा? अगर ए एंड बी डिफॉल्ट करते तो सी को पकड़ा जाएगा. ठीक है? ए एंड बी के लॉस से कोई लेना देना नहीं है. डी थर्ड पार्टी शुड नॉट सफर. लॉ बोलता है, लॉ क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट. लोगों को क्या पता कौन पार्टनर है कौन नहीं? आपके पार्टनरशिप में कौन पार्टनर है कौन नहीं लोगों को क्या पता है?
अगर आप बोल रहे हो आप पार्टनर है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसे. नो वन नोस हु आर एक्चुअल द पार्टनर्स आर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लॉ प्रोटेक्ट थर्ड पार्टी. डी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ए बी एंड सी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है लॉ. लॉ डी को प्रोटेक्ट कर रहा है. किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? थर्ड पार्टीज को. आगे लीगलिटीज में मत जाओ, लीगलिटीज इन लॉ. इसके एक खाली एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे जगह पे ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होती है इन लॉ. एक्टिव हु टेक्स एक्टिव पार्ट इनटू द बिजनेस, sleeping partner who does not take active part into the business, nominal partner who has given his name to the partnership firm, who has given his goodwill to the partnership firm. Nominal. Minor, a person who has not completed as a like 18 years of his age and is a partner. Such partner is called as minor partner. Minor partner can be admitted only for his benefits. उसके फायदे के लिए आप एडमिट कर सकते हो. You cannot make him liable for the losses. उसको लॉसेस में शेयर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो प्रॉफिट में मिलेगा. एंड हिज लायबिलिटी इज ऑलवेज लिमिटेड. उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती. देन पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ए पार्टनर हु ओनली शेयर्स प्रॉफिट, ही डज नॉट शेयर द लॉसेस. सच पार्टनर इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बाय पार्टनर बाय estoppel is a person who is actually not a partner, but he represent himself as a partner or let others to represent himself as a partner. And on that representation, in that good faith, third party gives credit and suffers. In that case, court protects the third party and makes such person liable for that transaction. खाली उस transaction के लिए वो partner माना जाएगा, बाकी नहीं. इसमें किस फायदा हो रहा है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर नुकसान होता है किसी का तो he will be held liable. ठीक है. आगे then these were the types of the partners for 1 mark. आगे किसी का डाउट है? लेट मी चेक. लीगलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी वो समझ में भी नहीं आएगा. Minor is a partner because he shares profit. Any person who shares profit is a partner. उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब वो इज लायबल बट लिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड, लिमिटेड. तो इज लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स बट नॉट अनलिमिटेड, बट लिमिटेड टू द लिमिटेड एक्सटेंट. सो इज अ म्यूचुअल एजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं. माइनर को लेना आपने लिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मेजर होने पे सिचुएशन पूरी चेंज हो जाती है, कभी ना कभी वो मेजर होगा ना, ऐसे. ओके, ऑलमोस्ट किए मैंने डाउट्स क्लियर. आगे नाउ सम ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स लिख लेना. और ये कंसेप्ट हर चैप्टर में, अपने 12th के हर चैप्टर में, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट. Interest on capital. Try to understand. This is your business. This is a partner, owner. Owner has invested money into the business. That is called as capital. Owner has given capital to the business, and as per business entity concept, आपने 11th में सीखा होगा, business and owner are separate. Business and owner are separate for the accounting purpose, and the amount given by owner to the business is called as capital, and that is the liability of the business. So capital is a liability. बिजनेस के लिए लाइबिलिटी,
ओनर के लिए इन्वेस्टमेंट, ओनर के लिए इन्वेस्टमेंट है। वो बोलता है मैंने बिजनेस से इन्वेस्ट किया है, और बिजनेस बोलता है हमारी लायबिलिटी है। जब बिजनेस बंद करोगे तो बिजनेस विल रिपे द कैपिटल टू होम ओनर, ठीक है। सो it is like a loan taken by the business from the owner. It is like it is not a loan, but it is same as loan taken from the owner. It is a liability. हम बिजनेस है, हम बिजनेस के अकाउंटेंट है, ओनर के नहीं। एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट। ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। सो द ओनर हैज गिवन कैपिटल, राइट? Owner has given capital, right? Owner has given capital to the business. It is investment for the owner and it is a liability for the business, or asset for the owner and liability for the business. Now what is interest on capital? Owner business को बोलता है, इन दोनों के बीच का डिस्कशन समझो। ओनर बिजनेस को बोलता है आई हैव गिवन यू मनी, राइट? ये अगर पैसा मैंने कहां पे दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया होता है, एग्जांपल एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में, तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता। अगर यही पैसा जो ओनर ने बिजनेस में डाला है किसी और जगह पे डाला होता तो उसको इंटरेस्ट मिलता, यस। बट उसने बिजनेस में डाला है इसलिए उसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, बोल रहा है मेरा लॉस हो रहा है। दूसरा, दिस इज वन कंटेंशन ऑफ द ओनर। ओनर क्या बोल रहा है, अगर ये पैसा मैंने कहां पे दूसरी जगह पे डाला होता तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता, बट मैंने बिजनेस में डाला है इसलिए मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, सो आई एम सफरिंग। दिस इज वन कंटेंशन ऑफ द ओनर। सेकंड कंटेंशन ऑफ द ओनर इज, वो बिजनेस को बोल रहा है अगर यही पैसा जो मैंने डाला है अगर तूने लोन लेके किया होता, बैंक से लोन लिया होता, मैंने 10 लाख डाला है सपोज, आई हैव माय कैपिटल इज 10 लाख, अगर यही 10 लाख तूने बैंक से लिया होता तो तुझे इंटरेस्ट देना पड़ता ना, यस। बट बस तूने मेरे से लिया इसलिए इंटरेस्ट नहीं दे रहा है तू। बिजनेस इज ए पर्सन, राइट? एंटिटी, ओनर इज ऑल्सो पर्सन। इन दोनों का डिस्कशन समझा रहा हूं मैं। ओनर बोल रहा है अगर यही पैसा मैंने किसी और को दिया होता या कहां पे इन्वेस्ट किया होता तो मैं मुझे इंटरेस्ट मिलता, मुझे उस पर रिटर्न्स मिलते हैं, मुझे उस पर राइट रिटर्न्स मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलता। बट मैंने तुझे दिया है इसलिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। और दूसरा कंटेंशन ओनर का है, अगर यही पैसा तूने किसी और से बोरो किया होता बिजनेस करने के लिए, बिजनेस से बात हो रही है, तो तुझे तो इंटरेस्ट देना पड़ता, तो खाली तूने मुझसे लिया इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, ये गलत है। नाउ द ओनर वांट्स इंटरेस्ट ऑन हिज मनी इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, ओनर उसने जो पैसे डाले हैं बिजनेस में उस पे इंटरेस्ट लगाएगा and business will pay interest to the owner. So try to understand interest on capital. Interest on capital is expense for the business and income for the owner. हमने एज ए बिजनेस हमने ओनर से पैसे लिए, उसको कैपिटल बोल रहे हो, तो हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जिससे पैसे लोगे उसको इंटरेस्ट दोगे ना। मैं कैपिटल को लोन की तरह देखता हूं, मैं हमेशा कैपिटल को लोन की तरह देखता हूं, इज एज गुड एज लोन टेकन फ्रॉम ओनर। खाली हम उसको नाम कैपिटल दे रहे हैं एंड वो लॉन्ग टर्म चलेगा, एंड तक पैसा चलेगा बिकॉज वो ओनर का है। बट इट इज उसके इट इज नॉट लोन, बट मैं उसको लोन की तरह देखता हूं। अगर मैंने ओनर से लोन लिया है तो मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिमिलरली कैपिटल इज अ काइंड ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम ओनर, कभी ना कभी तो रिटर्न करना पड़ेगा। कब करोगे? जब बिजनेस बंद होगा तब रिटर्न करोगे। सो उस मनी पे, उस कैपिटल पे हमें मतलब बिजनेस को इंटरेस्ट देना है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस एंड इनकम ऑफ द ओनर। समझ में आ रहा है? सो दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं? बिजनेस के लिए। तो इट इज एन एक्सपेंस, कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी जनरेट्स एक्सपेंसेस। असेट्स जनरेट इनकम्स। असेट्स क्यों आप लेते हो? बिकॉज
they generates income and liability generate expenses. So capital is a liability, उस पे मुझे interest देना है, तो that interest becomes my expense. Capital liability, interest on liability, interest on capital is an expense. ठीक है? Second, and कितने interest is always calculated for the time period. कितने मंथ्स आपने पैसे यूज किए उसके हिसाब से आप क्या करोगे, इंटरेस्ट निकालोगे. कैसे निकालना है, क्या करना है, मैं समझाता हूं, लिख लेना. एग्जांपल, अमर and Prem started partnership by partnership by introducing ठीक है. Amar and Prem started partnership by introducing capitals of rupees 10 lakhs each on 1st April 2019. Amar introduced additional capital. Amar and Prem लिखो. अमर एंड प्रेम दोनों इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल्स of rupees 5 lakhs and 3 lakhs respectively on, right, 30th September 2019. Then deed provides for, partnership deed provides for, agreement provides for deed provides for interest on capitals at the rate of 12% per annum, right. Calculate interest on capital for the year ended 31st March 2020. ध्यान देना. सॉल्यूशन, देखते हैं. अमर this is 1st April 19, this is 31st March 20. 1st April 19, 31st March 20. देखते हैं आगे क्या हुआ है. ठीक है, 1st April 19, 31st March 20 ये ईयर है. उन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया, 1st April 19. अमर ने कितना डाला, 10 लाख. अमर ने कितना डाला, 10 लाख 1st अप्रैल को. फिर उन्होंने कब डाला, 30th सितंबर को. अमर ने कितना इन्वेस्ट किया, 5 लाख. अमर का पहले कैपिटल 10 लाख था, फिर
30 सितंबर को उसने और 5 लाख डाला, इसलिए उसका एंड में कैपिटल कितना हो गया? 15 लाख। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, इस पीरियड में उसका कैपिटल कितना था? 10 लाख। फिर उसने 5 लाख और डाला तो उसका कैपिटल हो गया 15 लाख। सो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक उसका कैपिटल कितना था? 15 लाख। पहले का 10 और अभी का 5। सो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए उसका कैपिटल 10 लाख था, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए उसका कैपिटल 15 लाख था। सो कैन आई से आई एम ए बिजनेस, आई एम ए अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। मैं बोलूंगा कि अमर ने मुझे, मतलब बिजनेस को, अप्रैल से सितंबर एंड तक 10 लाख रुपए दिए और उसके बाद 15 लाख रुपए दिए, 5 लाख एक्स्ट्रा हो गए। फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए उसका कैपिटल 10 लाख था, लास्ट 6 मंथ्स के लिए उसका कैपिटल 15 लाख था। सो फर्म, द बिजनेस हैज बोरोड, हैज टेकन 10 lakhs for 6 months and 15 lakhs for remaining 6 months from Amar. So can't you find out interest? Yes. कैसे ढूंढोगे? सपोज हमने अमर हमारा ओनर नहीं है, अमर से हमने लोन लिया था, पहले 10 लाख का 6 मंथ्स के लिए और फिर 5 लाख और लोन लिया, 15 लाख का लोन हो गया नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे लॉजिकली। तो लोन की जगह कैपिटल बोलो ना। उसने हमें पहले 6 मंथ्स के लिए 10 लाख का कैपिटल दिया और बाद में रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए उसने हमें 15 लाख का कैपिटल दिया। देयरफॉर सो मैं बोलूंगा 10 लाख पे at the rate of 12% for first 6 months and बाद में 15 लाख पे at the rate of 12% for remaining 6 months, because first 6 months कैपिटल कितना आउटस्टैंडिंग था? 10 लाख। एंड लास्ट 1 अक्टूबर से मार्च एंड तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स के लिए कितना था? 15 लाख। सो दैट विल बी, ये रहेगा 60,000 और ये रहेगा 90,000। सो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,50,000। सो यहाँ पे लिखेंगे फर्म विल पे, फर्म विल पे रुपीज 1,50,000 इंटरेस्ट टू अमर ऑन हिज कैपिटल। अमर ने हमें कैपिटल दिया इसलिए हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, फर्म के लिए एक्सपेंस है। समझा कैसे कैलकुलेट किया? एनीवन हैज डाउट रिलेटेड टू दिस कैलकुलेशन? एनीवन हैज डाउट रिलेटेड टू दिस कैलकुलेशन? सिंपल है, कैपिटल इज लोन मान के सॉल्व करो, ठीक है। इट इज एज गुड एज लोन फ्रॉम द ओनर, उस पे इंटरेस्ट देना है। एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द विद रिस्पेक्ट टू द टाइम फॉर विच यू आर यूजिंग द फंड्स। अगर हमने 6 मंथ्स पैसे यूज किए तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे, अगर 8 मंथ्स पैसे यूज किए तो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे, या पूरे साल का दोगे। जितने मंथ्स हमने पैसे यूज किए उतने मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और जितने पैसे यूज किए उस पे ही देंगे, जितने यूज किए उस पे, कितने मंथ्स के लिए, जितने मंथ्स यूज किया उतने मंथ्स के लिए, ठीक है। आगे ऑब्वियसली मैं राइट मैं there are many ways by which you can calculate interest on capital, many ways, ठीक है। मैं एक मेथड समझा रहा हूं, देन देखते हैं। अमर का सब मेथड समझाता हूं, पहले ध्यान देना ये तो क्लियर है क्या नहीं है? 15 लाख, 1,50,000। आगे नेक्स्ट, यस यस वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको पे करना होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। बी, जैसे हम लोन पे इंटरेस्ट देते हैं ना, वैसे कैपिटल पे भी इंटरेस्ट देना होता है। वो क्यों देना है ये भी समझाऊंगा। बी, बी नहीं सॉरी, अमर एंड प्रेम। अब प्रेम का देखते हैं।
1 अप्रैल को प्रेम ने 10 लाख इन्वेस्ट किए। 1 अप्रैल को प्रेम ने 10 लाख डाले। 30 सितंबर तक 10 लाख थे, एंड यहाँ पे उसने 3 लाख और डाले, तो उसके बाद उसका कैपिटल हो गया 13 लाख। एंड में रहेगा 13 लाख, 31 मार्च तक 13 लाख। इस पीरियड के लिए उसका कैपिटल 13 लाख था, बराबर। तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए 10 लाख, लास्ट 6 मंथ्स के लिए 13 लाख। तो इंटरेस्ट ढूंढते हैं। 10 lakhs पे at the rate of 12% for 6 months, and 13 लाख पे 12% for remaining 6 months। ये आएगा 60,000 और ये आ जाएगा 78,000। सो इसको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 1,38,000। जिसने कम पैसा डाला उसको कम इंटरेस्ट मिलेगा। सो जिसका कैपिटल कम उसको कम इंटरेस्ट, जिसने ज्यादा कैपिटल डाला उसको ज्यादा इंटरेस्ट। ऐसे हो सकता है ना कि एक पार्टनर जानबूझ के कम पैसा डालेगा और दूसरा पार्टनर ज्यादा पैसा डालेगा, तो जो ज्यादा डालेगा बोलेगा मैंने इतना इन्वेस्ट किया, उसका मुझे क्या फायदा। भाई टेंशन मत ले, इंटरेस्ट मिलेगा तुझे। सो क्या होता है, जनरली पार्टनर्स के कैपिटल कम ज्यादा होता है, तो उसमें जिसने ज्यादा डाला है उसका तो लॉस हो गया, फिर उसने क्यों ज्यादा डालना चाहिए। तो टू अवॉइड दैट कॉन्फ्लिक्ट कि मैंने ज्यादा डाला है तूने कम डाला है, ये झगड़े मिटाने के लिए हम इंटरेस्ट देते हैं। तो जो ज्यादा डालेगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल है। समझ में आ रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सो आगे, अच्छा देयर इज वन क्वेश्चन, आई विल टेक दैट क्वेश्चन, लेट मी चेक। अच्छा किसी ने हैंड रेज किया था, अच्छा ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, ठीक है। सो फर्म विल पे एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट टू अमर, प्रेम, सॉरी ये प्रेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रेम ऑन हिज कैपिटल। हम क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, रीजन है अगर किसी पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल डाला होगा तो उसका उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना उसको, नहीं तो कोई भी कैपिटल नहीं डालेगा। तो जिसने ज्यादा कैपिटल डाला है उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा एज कंपेयर टू अदर पार्टनर्स। तो टू कंपेंसेट सच पार्टनर देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम ऑडिबल और नो, समवन हैज ping me that I am not audible, please, if I am not audible please tell me, ठीक है। जनरली इट वोंट बी एट माय पॉइंट, यस। नेक्स्ट, करें स्टार्ट, क्योंकि मेरे इधर एक माइक आता है, इफ आई स्पीक ना वो कम फ्लक्चुएट होता है, तो वहां से मुझे पता चलता है कि आई एम ऑडिबल, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, इसका एक और तरीका है निकालने का जो मैं फॉलो करता हूं, ध्यान देना। सेम आंसर कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, फॉर्मूला लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, दिस इज मेथड वन,
आप ऐसे ढूंढ सकते हो, ये मेथड 1 है। नाउ मेथड 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान देना कैसे। अमर, प्रेम, on opening capital for 12 months. दिस इज मेथड 2। आप सेम आंसर आएगा, ध्यान देना। अमर का ओपनिंग कैपिटल कितना था? 10 लाख। सो कहने से ये 10 लाख 12 मंथ था और 5 लाख 6 मंथ था। ऐसे भी बोल सकता हूं ना, एक ऐसे बोल सकता हूं कि 10 लाख फर्स्ट 6 मंथ था एंड 15 लाख नेक्स्ट 6 मंथ था। दिस इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ऐसे बोल सकता हूं कि 10 लाख 12 मंथ था एंड 5 लाख 6 मंथ था। ऐसे भी ढूंढ सकता हूं। समझ में आ रहा है? वो वाला ऑप्शन। ऑन ओपनिंग कैपिटल फॉर 12 मंथ्स। सो अमर का 10 लाख कैपिटल at the rate of 12% for the entire year 12 by 12. This will be 1,20,000. प्रेम के केस में 10 लाख कैपिटल था ओपनिंग at the rate of 12% for 12 by 12, 1,20,000. प्रेम का देखो 10 lakhs for the entire year, ऐसे बोल सकता हूं। ऑप्शन 1 10 lakhs for 6 months, 13 lakhs for 6 months. This is option 1. दूसरा ऑप्शन 10 lakhs for 12 months and 3 lakhs for 6 months. ठीक है, देखते हैं। सेकंड, एड on opening capital, sorry, on additional capital from date of addition till year ends. ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का निकालो एंड अगर बीच में एडिशन है, एडिशन से ईयर एंड तक निकालो। क्या बोला मैंने? ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का एंड एडिशन पे फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टिल द ईयर एंड। अच्छा, अमर ने 5 लाख इन्वेस्ट किए थे एडिशनली। सो 5 लाख उसने कब इन्वेस्ट किए थे? अमर ने 5 लाख उसने 30 सितंबर मतलब 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स के लिए। तो 5 लाख पे 6 मंथ्स के लिए ढूंढेंगे। ठीक है, सो दैट विल बी 30,000। 5 lakhs पे 12% फॉर 6 मंथ्स 30,000। एंड व्हाट अबाउट प्रेम? प्रेम ने एडिशनल कितना डाला था? 3 लाख। कब से कब तक? अक्टूबर से मार्च तक। तो 3 lakhs पे फॉर 6 मंथ्स एडिशन से ईयर एंड तक। दिस इज अनदर ऑप्शन। 3 lakhs पे 12% फॉर 6 मंथ्स, so that is 18,000. Therefore total interest ओपनिंग कैपिटल पे 1,20,000, अमर के केस में एडिशनल कैपिटल पे 30,000, टोटल इंटरेस्ट इज 1,50,000। प्रेम के केस में ओपनिंग कैपिटल पे 1,20,000, एडिशनल कैपिटल पे 18,000, टोटल 1,38,000। पहले आंसर से मैच करो, हो रहा है क्या मैच? आप कोई भी मेथड फॉलो करो, इंटरेस्ट तो सेम आना चाहिए ना। इज इट 1,50,000? यस। इज इट 1,38,000? यस। तो आंसर इज करेक्ट, यस। लिख लेना, दिस इज अनदर मेथड एंड मैं ये फॉलो करता हूं, ये मैं फॉलो करता हूं। हम ये फॉलो करेंगे। ठीक है, लिख लेना। हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे 12 मंथ्स का निकालेंगे
एंड एडिशनल कैपिटल का एडिशन से ईयर एंड तक निकालेंगे, ठीक है। आगे लिखो जल्दी। अच्छा मैं वीडियो हेड करता हूं, मतलब आपको पूरा दिखेगा। चलो जल्दी लिखो। ठीक है, आपको कैसे निकालना है, इट्स योर चॉइस। हाँ, इट्स योर चॉइस। कोई बच्चे ऐसे निकालते हैं मेथड 1 के हिसाब से, करेक्ट। कोई बच्चे ऐसे निकालते हैं, अगेन करेक्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अनदर एग्जांपल, अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता हूं। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं? बिकॉज देयर आर मेनी पार्टनर्स, तो उनमें झगड़े हो सकते हैं, मैंने ज्यादा डाला तूने कम डाला। तो टू अवॉइड सच डिस्प्यूट्स हम बोलते हैं जो ज्यादा डालेगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, एज सिंपल एज दैट, बराबर ना। तो उससे झगड़े भी कम होते हैं, टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, ये भी बोल सकते हैं, दैट कैन बी वन रीजन। अनदर रीजन तो मैंने बोला कंटेंशन ऑफ द ओनर, वो बोल रहा है मैंने तो बिजनेस में डाला, बाहर पैसे डाले तो मुझे पैसे मिलते हैं, तो चलो मुझे बाहर 10% इंटरेस्ट मिलता, आप मुझे 8% तो दे दो, 7% तो दे दो, 6% तो दे दो, थोड़ा तो दे दो। ओनर बिजनेस को बोल रहा है अगर तूने यही पैसे बोरो किए होते तुझे 15% देना पड़ता, तो मुझे 10% देने में प्रॉब्लम क्या है, 5% के कमी देना है ना तुझे। दैट कैन बी वन कंटेंशन, अनदर कंटेंशन कैन बी टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट, सो जिसने ज्यादा कैपिटल डाला होगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट एग्जांपल, X had opening, had capital balance of rupees 8 lakhs on 1st April 19. He introduced additional capital. Additional capital can be brought in cash or in kind. हमने 11th की फर्स्ट एंट्री सीखी थी, कैपिटल बिजनेस स्टार्टेड, business can be started with cash or assets, like owner can give building account debit to capital, it is a capital. He can give you stock account debit to capital. He can give you vehicle account debit to capital. Capital introduced can be in cash or it can be in asset. जो भी ओनर ने खुद के जेब में से डाला, खुद के रिसोर्स में से डाला, उसको कैपिटल बोलते हो, फिर वो कैश होने दो या कोई दूसरी असेट होने दो। He introduced additional capital of rupees 4 lakhs on 1st July.
19. He in withdrawn rupees 1 lakh permanently from his capital. It is not drawings. If you are withdrawing permanently, it is withdrawal of capital, it is not drawings. Drawings is a recurring, हमेशा होती है. You are withdrawing capital. On calculate also give the entries. You have, I will give 3 minutes. मैं टाइमर लगा रहा हूं. You have 3 minutes. You have to tell me interest on capital. Calculator यूज करो, जो करना है करो, मुझे आंसर दे दो. You have 3 minutes. 12th में कैलकुलेटर यूज करना एक्सपेक्टेड नहीं है, बट मैं आपको वो मुफा भी दे रहा हूं. करो ट्राई. Okay, there are some answers. Let me check. Permanent withdrawal of capital is a not drawings. Drawings is temporary. Withdrawal against the profits is called as drawings, and withdrawal of capital is like decrease in capital and not drawings. Okay, let's see. Obviously I will tell you difference between drawings and capital जब drawings के बात आएगी. ठीक है, ध्यान देना. So मैं जनरली मेरी आदत है, मैं हमेशा डायग्राम निकालता हूं. जब भी मुझे कोई चीज समझनी होती है ना,
I draw a timeline. So this is 1st April. उसके बाद 30th या 1st जुलाई का ट्रांजैक्शन हुआ. उसके बाद 30th सितंबर को एक ट्रांजैक्शन हुआ. यस. एंड दिस इज ईयर एंड 20. क्या क्या हुआ ध्यान देना. उसका ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे 8 लाख था. देन यहाँ पे उसने 4 लाख रुपीस ऐड किए. सो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स के लिए उसका कैपिटल 8 लाख था. 8 लाख. फिर 1 जुलाई को उसने और 4 लाख डाले तो हिज कैपिटल बिकम 12 लाख. जुलाई अगस्त सितंबर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए उसका कैपिटल था 8 लाख. देन हिज कैपिटल बिकम 12 लाख जो जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स के लिए था. बराबर. एंड एट द एंड ऑफ जुलाई he withdrawn rupees 1 lakh permanently. It is permanent withdrawal of capital. It's not temporary. It's not drawings. It's a decrease in capital. Straight. इसकी एंट्री drawings to cash नहीं आती है. इसकी एंट्री आती है capital to cash. जब drawings होती है तब एंट्री आती है drawings to cash. But this is permanent withdrawal of capital. इससे एंट्री आएगी capital account debit to cash. It's not drawings. ठीक है. वर्डिंग सेज इट इज अ परमानेंट. आगे फिर उसका कैपिटल 12 लाख से कितना हो जाएगा 11 लाख. सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च नेक्स्ट 6 मंथ्स हिज कैपिटल वाज 11 lakhs एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दिख रहा होगा 11 lakhs क्रेडिट पे. बराबर. समझ में आ रहा है. व्हाट आर द एंट्रीज. मैं एंट्रीज लिखता हूं या पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मेथड 1. मेथड 1 इस पे 3 मंथ्स के लिए, इस पे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए और इस पे रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. सो 8 लाख पे 12% for 3 months. 3 by 12. Diagrams help you to right click. पीरियड वगैरह इजी समझ में आ जाता है अपने को. यहाँ पे 12 लाख पे 12% for 3 months. 11 lakhs पे 12% for remaining 6 months. It will be 12 cancel होगा. It is 24,000 plus 12 cancel होगा. This is 36,000 plus 12 cancel होगा 66,000. 24 plus 36 60. 60 plus 66 कितना आएगा. Oh sorry, 60 plus 66 is it 1,26,000. लेट मी चेक. तुम लोगों ने क्या आंसर दिया है. अच्छा मेरा क्यों गलत आया फिर. सबका 1,14,000 है. इट शुड बी 1,26,000. आई डोंट नो आप लोगों ने 1,14,000 कैसे आया. आप लोगों का कोई मुझे बोलेगा क्या 1,14,000 कैसे आया. एनीवन. मतलब मुझे समझ में आएगा कैसे निकाले आप लोगों ने. एनीवन नहीं. 1,14,000 वाले मुझे बोलो. मुझे पता चलेगा क्या गलती है. अनतन तू बोल कैसे. चल अनम्यूट कर खुद को. मैं 1 मिनट मैं किसको पकड़ता हूं. जिसका 1,14,000 है मुझे सोचने दो कि क्यों 1,14,000 आया. हाँ यस प्लीज. सर मैंने 1 लाख माइनस नहीं किया. अच्छा तूने 1 लाख माइनस नहीं किया इसलिए. ठीक है कोई 1 लाख अगर तूने माइनस नहीं किया तो तेरा इंटरेस्ट ज्यादा आना चाहिए ना रे. इफ यू आर नॉट डिडक्टेड 1 लाख
ओके देखते हैं, दिस इज करेक्ट आंसर। अब मैं आपको मेथड 2 से दिखाता हूं। देखिए मेथड 2, हमने कितने मंथ्स पैसे यूज किए, लाइक 8 लाख 3 मंथ्स यूज किए तो 8 लाख पे 3 मंथ्स का देंगे। फिर 12 लाख 3 मंथ के लिए यूज किए तो 12 लाख पे 3 मंथ्स का देंगे। और फिर वो 11 लाख हो गया, 11 लाख 6 मंथ्स के लिए यूज किया तो 6 मंथ्स के लिए देंगे। जितना पैसा जितने मंथ्स यूज किया उतने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट दोगे, और जितना यूज हुआ उस पे दोगे। समझ में आ रहा है? सो मेथड 2, मेथड 2 ऑन ओपनिंग कैपिटल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, ऑन ओपनिंग कैपिटल फॉर 12 मंथ्स, ओपनिंग पे हमेशा 12 मंथ्स का, सो 8 lakhs पे at the rate of 12% for the entire year, 12 96,000, then add on additional capital from date of addition till the year ends, या जिस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करो उस तारीख तक, टू ईयर एंड्स। आपने कितना एडिशन किया था? 4 लाख, सो 4 लाख पे एट द रेट ऑफ 12%, कब ऐड किया था आपने? आपने ऐड किया था इस पे आपने 12 मंथ्स का दे दिया, फिर इस पे आप 1 जुलाई से ईयर एंड तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स, सो 12 कैंसिल होगा, दिस विल बी 36,000। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का, एडिशनल कैपिटल पे फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टिल द ईयर एंड ऐड होगा। एंड इफ देयर इज अ विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, तो वो कैपिटल माइनस हुआ है तो उसका इंटरेस्ट माइनस करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टिल द ईयर एंड। बिकॉज इस 8 लाख में से 1 लाख गया है, 8 लाख में से 1 लाख गया होगा। आपने 8 लाख पे पूरे साल का निकाला है, एक्चुअली आपने 8 लाख पे 6 मंथ्स एंड 7 लाख पे 6 मंथ्स निकालना चाहिए था, 8 पे 6 मंथ्स एंड 7 पे 6 मंथ्स, बट आपने क्या किया? 8 लाख पे पूरे साल का निकाला है, तो 1 लाख पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आ चुका है, तो अब मैं माइनस करता हूं, इसलिए मैं लिखता हूं लेस ऑन विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, withdrawal of capital from date of withdrawal to year ends। एडिशनल कैपिटल पे ऐड होगा, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल पे माइनस होगा, एज सिंपल एज दैट। एडिशनल कैपिटल पे ऐड होगा, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस होगा। कितना विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है? 1 लाख एट द रेट ऑफ 12%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स विड्रॉ हुआ है? अक्टूबर से, माइनस कर रहा हूं, इस पीरियड का इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, 1 लाख पे इस पीरियड का इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, बट आपने 8 लाख में वो लिया है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 8 लाख में, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं। अक्टूबर से मार्च एंड तक 6 मंथ्स का ये निगेटिव इंटरेस्ट होगा 6,000। So what is your interest on capital? 96,000 plus 30,000 overall, 36 minus 6, 30,000. It will be 1,26,000. So लिखो मेथड 2।
So I have got now Filer formula. ठीक है? Okay. So what is my formula? What is my formula? On opening capital for 12 months, on additional capital add हो जाएगा on additional capital from the date of addition till the year end, and minus हो जाएगा on withdrawal of capital from the date of withdrawal till the year end. This is another, like this is final formula. लिखो, मुझे इंट्रीज भी लिख के देने, लिखो, ठीक है? लिखो जल्दी, करो कंप्लीट. मैं वीडियो ऐड करता हूं, मतलब आपको पूरा दिखेगा. लिखो जल्दी. So this is your final formula. This is your final formula. इसमें अब कोई changes नहीं. What is my formula? On opening capital for 12 months, calculate interest on opening capital for 12 months, add interest on additional capital from the date of addition till the year end, and minus किया जाएगा interest on withdrawal of capital from the date of withdrawal till the year ends. अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो आपके पास हमेशा है. Are you getting my point? डायग्राम निकालते जाओ, दैट विल हेल्प यू. लिखो जल्दी. नाउ आई हैव टू डिस्कस द इंट्रीज. लिखो, फिर मैं इंट्रीज डिस्कस करता हूं, ठीक है? अब देखते हैं इंट्रीज. ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री आती नहीं, वो एंट्री आती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल. ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री 11th में लिखते थे असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू लायबिलिटी, बट हमारे पास सब असेट्स एंड सब लायबिलिटीज नहीं, इसलिए मैं ओपनिंग जो मेरा 10 लाख का 8 लाख का कैपिटल है उसकी एंट्री नहीं लिखूंगा, ठीक है? फिर उसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? 1 जुलाई को 4 लाख कैपिटल आ गया, तो लिखो 1 जुलाई को व्हेन ओनर इंट्रोड्यूस कैपिटल, क्या एंट्री आती है? कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट. कैश इंक्रीज, असेट इंक्रीज डेबिट, असेट इंक्रीज डेबिट, असेट डिक्रीज क्रेडिट, असेट इंक्रीज हो गए डेबिट. कितने से? 4 लाख. एडिशनल कैपिटल 4 लाख है. ओपनिंग कैपिटल की एंट्री नहीं, 4 लाख. 2 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 4 लाख. बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस. फिर क्या हुआ? फिर 3 मंथ्स के बाद इसकी एंट्री आ गई. 3 मंथ्स के बाद ही विड्रॉ कैपिटल परमानेंटली. तो कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ करोगे तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी 30 सितंबर को. कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख का कैपिटल विड्रॉ हुआ. 2 कैश ऑब्लिक बैंक 1 लाख 1 लाख. कैश कम हो गई इसलिए क्रेडिट. असेट डिक्रीज क्रेडिट. यहाँ पे असेट इंक्रीज डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट. यहाँ पे लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, बिजनेस की लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, वो 1 लाख लेके गए ना, अब उसको बाद में हम 1 लाख नहीं पे करेंगे. लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट एंड कैश डिक्रीज, बैंक बैलेंस डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है? सो कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करो, कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट करो. एज सिंपल एज दैट. एट द एंड ऑफ द ईयर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया रे? 1,26,000। इफ मैंने 11th में, एक सेकंड, जो 11th से कैरी फॉरवर्ड बच्चे हैं, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट ली थी क्या रे? फाइनल अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट ली थी क्या? अगर ली थी तो कोई मुझे इफेक्ट बोल सकता है जिसको याद है? यस प्लीज, कोई कोई बोलेगा? अपूर्व मैडम बोल सकते हो आप? एक सेकंड, बिकॉज मैं ये सब चीजें ना 11th में सिखा देता हूं। एक सेकंड मैडम, इफेक्ट क्या थे, याद है? बोल सकते? Interest on capital account debit to capital account credit. परफेक्ट। और इसको फाइनल अकाउंट्स में कैसे लिखते दूं? सर मैं उसको लाइबिलिटीज में ऐड कर देते थे। कैपिटल में, बराबर। हाँ, और दूसरा इफेक्ट? दूसरा इफेक्ट उसको पीएनएल नीचे के साइड यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड करते थे। परफेक्ट, गुड, याद है मतलब, गुड। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें ओनर को उसने जो हमें पैसे दिए हैं उसके लिए हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, सो ये हमारा एक्सपेंस है एंड एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। सो इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट डेबिट होगा तो कैपिटल पे भी इंटरेस्ट डेबिट होगा। सो इंटरेस्ट आ गया 1,26,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना इंटरेस्ट? इट इज इंक्रीज इन एक्सपेंस, सैलरी इंक्रीज डेबिट, रेंट इंक्रीज डेबिट, राइट? परचेस करते हो डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहे हो, ऑन सिमिलर बेसिस दिस इज एक्सपेंस, डेबिट हो जाएगा। कितना? 1,26,000। 26 या 36 था, 1,26,000। टू, यू डोंट एक्चुअली पे इंटरेस्ट, आप कैश में नहीं देते, यू नेवर पे इन कैश। आप उसको बोलते हैं तुझे 1,26,000 इंटरेस्ट देना है ना, वी विल एड इन योर कैपिटल, और बाद में कैपिटल रिपे करेंगे जब बिजनेस बंद होगा तब। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट एक्चुअली पेड, हम कैश नहीं देते, हम उसके कैपिटल में ऐड करके रखते हैं। हम बोलते हैं तुझे पे करेंगे, तेरी लाइबिलिटी है, हमारी तेरे टूवर्ड्स लाइबिलिटी है, तो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो आई इंक्रीज एक्सपेंस, आई इंक्रीज लाइबिलिटी, add in expense, add in liability, add in expense, add in liability. So उसकी वजह से now capital at the end of the year, देखो उसका कैपिटल 11 लाख था प्लस उसका इंटरेस्ट 1,26,000, तो हम बोलेंगे तेरा टोटल कैपिटल होगा 12,26,000। हम उसको बोलेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुझे देंगे बट कैश में नहीं देते, हम उसके कैपिटल में ऐड करके रखते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोन में ऐड करते हैं और बाद में रिपे करते हैं, ऑन सिमिलर बेसिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसके कैपिटल में ऐड करके रखेंगे। कैपिटल में ऐड करना है मतलब क्रेडिट करना है, मैंने कैपिटल को क्रेडिट किया। सो यहाँ पे लिख लेना एड इन एक्सपेंस, एड इन लाइबिलिटी। ये फाइनल अकाउंट के इफेक्ट आ गए। Therefore कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बाय क्रेडिट इज इंक्रीज इन कैपिटल, डेबिट इज डिक्रीज इन कैपिटल। ये एरो निकालते जाओ, एग्जाम में नहीं निकालना, ये आपको समझने के लिए। लाइबिलिटी अकाउंट है ना, तो क्रेडिट इंक्रीज होगा, डेबिट डिक्रीज होगा बाय ओपनिंग या बैलेंस ब्रॉट डाउन, या ओपनिंग बैलेंस, जो लिखना है लिखो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ओपनिंग बैलेंस था उसका? 8 लाख। दिस इज ऑन 1st April। 1st April 19, 3 मंथ्स के बाद ऑन 1st July उसने हमें और कैपिटल दिया, तो कैपिटल इंक्रीज करना है बाय कैश। एंट्री होती कैश टू कैपिटल, कैश के डेबिट पे, कैपिटल के क्रेडिट पे। कितना? 4 लाख, बराबर। सो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 8 + 4 12 लाख हो गया। फिर और 3 मंथ्स के बाद 30 सितंबर को उसने कैपिटल
लेके गया वो, तो कैपिटल कम होगा, तो कैपिटल कम होगा मतलब कैपिटल को डेबिट टू कैश, वो 1 लाख लेके गया। सो अभी तक 12 लाख कैपिटल क्रेडिट माइनस 1 लाख कैपिटल, कितना कैपिटल दिख रहा है? 11 लाख। कितना दिख रहा है? 11 लाख। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हमने इंटरेस्ट ढूंढा, उसको 1,26,000 देने हैं, एड इन एक्सपेंस, एड इन हिज कैपिटल, कैपिटल में ऐड करना है, राइट? तो क्रेडिट करो 30th मार्च बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,26,000। कैपिटल को क्रेडिट करना मतलब कैपिटल में ऐड करना, ठीक है? देयरफॉर क्लोजिंग बैलेंस, प्रॉफिट मुझे पता नहीं तो मैं प्रॉफिट भी ऐड कर देता, आई डोंट नो द प्रॉफिट, ठीक है? 2 बैलेंस कैरिड डाउन 12,26,000, and this interest being nominal account is transferred to P&L, P&L में जाएगा। सो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, कहां पे जाएगा? P&L के डेबिट पे। इंटरेस्ट का बैलेंस क्लोज करना है और P&L में डालना है, डेबिट का बैलेंस क्लोज करना है तो डेबिट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और उसका डेबिट P&L को दोगे तो एंट्री आ जाएगी P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू interest on capital, and this entry is wrong entry because it is not P&L account, it should be P&L appropriation account, but Maharashtra board does not understand the P&L appropriation account. मैं P&L account लिख रहा हूं, but to be very frank this has to be P&L appropriation account. हमारे एग्जाम के लिए 12th के लिए P&L appropriation, CA फाउंडेशन 12th के लिए P&L account, सीए फाउंडेशन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट रहेगा। सो मैं रॉन्ग और करेक्ट दोनों बोलता हूं, ध्यान देना, ठीक है? 1,26,000 1,26,000 ये 31st मार्च की एंट्री रहेगी। सो व्हाट इज द एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, देयरफॉर interest on capital account debit to capital account credit. Don't say to cash, don't say to bank, we never pay, we add in liability. जो पे नहीं करते वो लाइबिलिटी बन जाती है, अगर आप उसको पे करते तो कैश कम हो जाती, बैंक बैलेंस कम हो जाता, बट हम पे नहीं कर रहे इसलिए हमारी लाइबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो एड इन एक्सपेंस, एड इन लाइबिलिटी, उस एक्सपेंस को कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा? P&L में, इसलिए एंट्री आ जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,26,000 1,26,000। देयरफॉर उसने जो बोला था अपूर्वा ने कि देयर आर 2 इफेक्ट्स, एक कैपिटल में ऐड करो, कैपिटल में ऐड करो, और दूसरा इफेक्ट था P&L के डेबिट पे लिखो सर, एक्सपेंस में ऐड करो, एक्सपेंस में ऐड करो, इसलिए कहां पे लिख लेना? इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फाइनल अकाउंट, इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फाइनल अकाउंट। Add in expense, and interest is always indirect expense, add in expense, P&L डेबिट, P&L में डेबिट तो कहां पे? तो क्रेडिट होना चाहिए। सेकंड, एड इन कैपिटल, मतलब कैपिटल में क्रेडिट, एक जगह पे डेबिट है दूसरी जगह पे क्रेडिट होना चाहिए, इसलिए P&L के डेबिट में जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट पे आएगा। दिस इज अ इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, इज देयर एनी क्वेश्चन? अच्छा, मैंने गलत वैल्यू लिखी है, नहीं बराबर है। अरे 12,20 बैलेंस 12,26,000 आएगा ना, कितना आएगा फिर? बैलेंस कितना आएगा देखो,
11 लाख प्लस 1,26,000, 12,26,000 आएगा क्लोजिंग बैलेंस, बराबर है? 12,26,000 परफेक्ट है। इंटरेस्ट ये है भाई, ये क्लोजिंग बैलेंस है। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद कैपिटल इंक्रीज होगा ना। आगे सर आपने, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आज हमने क्या स्टडी किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टडी किया। कल मैथ्स का लेक्चर है ना, ठीक है, कल 3:30 को लेक्चर होगा। सैटरडे का लेक्चर मैंने बोला है आई एम अपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, ठीक है। मेरा लास्ट मतलब देखो, मैंने लास्ट मंथ में बोला था मेरा एक एग्जाम दे रहा हूँ, दैट एग्जाम आई गॉट क्लियर। दिस इज लास्ट स्टेज जो मेरा सैटरडे एंड संडे को है, तो वो मैं पेपर देने जा रहा हूँ। तो सैटरडे संडे में लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, सो इको का लेक्चर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ये क्या लॉकडाउन में कुछ काम नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, सिखाना है। एंड आई गॉट टाइम इन द लेट नाइट, सो आई कीप ऑन स्टडिंग। सो एक कुछ बहुत दिनों से था कि वो करना है, बट कभी टाइम नहीं मिला, तो अभी थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, बिकॉज ट्रैवलिंग वगैरह टाइम से होता है। एंड तुम लोगों की थोड़ी बैच आगे गई थी, तो मेरे पास टाइम था, तो आई स्टडीड एंड आई एम अपेयरिंग। वो एग्जाम में क्लियर हुई फर्स्ट लेवल, एंड नाउ दिस इज सेकंड एंड लास्ट लेवल, ठीक है। इसके बाद फिर छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। थैंक यू। ग्रुप पे भी बहुत लोगों ने लिखा है, थैंक यू। चलो मैं एंड करता हूँ ना, आई विल अपलोड ऑल द लेक्चर्स बाय टुनाइट, ठीक है। ये नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू। ओके, आई विल टेल यू वंस रिजल्ट, ये फाइनल क्लियर होने के बाद मैं बोल देता हूँ क्या है, ठीक है। हो जाऊंगा, उतना टेंशन नहीं है, बट राइट, कोई चीजें सीक्रेट होना अच्छा रहता है। थैंक यू बोल दूंगा ऑब्वियसली। बच्चे बोल रहे पार्टी, पार्टी भी दे दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू। सी इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स वेरियस एग्जाम्स आफ्टर पासिंग आउट ए सीए। सी इंस्टीट्यूट बहुत सारे एग्जाम्स लेता है, लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एग्जाम होती है, वैल्यूअर की वैल्यूएशन जो करते हैं ना, सर्टिफाइड वैल्यूअर्स, उनकी एग्जाम्स होती है। तो आई एम अपेयरिंग फॉर सच एग्जामिनेशन, दे आर सर्टिफिकेशन कोर्सेज, तो मैं वो कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम है। सो ऑलवेज रिमेंबर, कीप ऑन लर्निंग यार। मेरे में भी बहुत ब्रेक हुआ था, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे बहुत करना था, लेकिन एक बार पास आउट होने के बाद मोटिवेशन नहीं रहता ना। आई स्टार्टेड टीचिंग, तो टीचिंग रिलेटेड चीजें मैं सीखने स्टार्ट कर दिया। बट अभी टाइम है, लॉकडाउन में मेरे पास टाइम था बेसिकली, तो मैंने उसको यूज करना स्टार्ट किया, एंड फिर मैं वो कर रहा हूँ। नॉट फॉर लाइक हर चीज पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, बट एक नॉलेज के लिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ओके, रिलेटेड टू ऐप, मैंने आपके जो आपने गूगल फॉर्म फिल किए थे ना, वो सब मैंने नवीपेट ऑफिस में दिए हैं। दे विल अपलोड, मे बी मुझे लगता है सैटरडे संडे वो कर देंगे। जैसे वो अपलोड हो जाएगी पूरी लिस्ट, जो भी आपने फॉर्म फिल किए थे ना, वो मैंने दे दिए उनको। तो जैसे वो फॉर्म फिल करेंगे ना, तो यू विल गेट एन मैसेज। जैसे मैसेज आएगा आपको बाकी सब चीजें हो जाएगी, तो संडे तक होल्ड करो, सब चीजें लाइन में आ जाएगी। बिकॉज वैसे भी बहुत सारा बर्डन है, वी आर नॉट आस्क्ड ऑल द ऑफिस स्टाफ टू कम हियर, हम काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। ओसी लेक्चर, यस ओसी लेक्चर कल 5:45 को होगा, राइट, और सैटरडे को भी होगा। इको इस वीक में नहीं होगा, आई विल बी स्टार्टिंग, फिर मैं नेक्स्ट वीक में थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले दूंगा, इको कवर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, आई हैव वन सेट ऑफ बुक्स विथ मी राइट नाउ, आई हैव वन सेट ऑफ सीए फाउंडेशन बुक्स विथ मी, जिसको पॉसिबल है, कोई भी ऐसे कुछ नहीं है, कल और बुक्स आने वाले हैं, बच्चे आने वाले हैं मुझे मिलने को, ठीक है। तो मैं उनसे बुक्स उनको बोला है कि लाके रख दो, आई विल कम्युनिकेट, ठीक है। थैंक यू।